Good evening. Thank you all for your patience and for joining at this relatively late hour. I have some prepared remarks that I'll share with you, and as Randhir said, due to some preoccupations, will not be able to take questions tonight. The Cabinet Committee on Security met this evening under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. The CCS was briefed in detail on the terrorist attack on 22nd April 2025 in Pahalgam in Jammu and Kashmir, in which 25 Indians and 1 Nepali citizen were killed. A number of others sustained injuries. The CCS condemned the attack in the strongest terms and expressed its deepest condolences to the families of the victims and hoped for the early recovery of the injured. Strong expressions of support and solidarity have been received from many governments around the world, which have unequivocally condemned this terror attack. The CCS recorded its appreciation for such sentiments, which reflect zero tolerance for terrorism. In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The Defence, Military, Naval and Air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. With that, we come to the closure of this press briefing. Thank you very much. तो विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी जानकारी दी गई है। बड़ी जानकारी के मुताबिक सिंधु जल समझौते पर रोक लगाई गई है। बड़ी जानकारी, आतंकी हमले को लेकर जानकारी दे रहे थे
पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई जिसमें विदेश मंत्री भी मौजूद रहे। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द करने की बात विदेश मंत्रालय ने कही है। भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद करने का ऐलान विदेश मंत्रालय ने किया है। अटारी वाघा बॉर्डर बंद किया गया है और ये फैसला उस वक्त जब आतंकी हमले के पीछे कहीं ना कहीं ये आशंका जताई गई कि पाकिस्तान का फिर से क्षय और शरण हो सकती है। सिंधु जल समझौता सबसे बड़ा प्रहार, चूंकि सिंधु जल समझौता सिंधु नदी प्रणाली के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच जल वितरण को लेकर हुआ एक समझौता है जो कि 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मौजूदगी में हुआ था। अब इस पर रोक लगाने की बात भारत की ओर से कह दी है, अर्थात क्या अब पाकिस्तान बूंद बूंद जल के लिए इस फैसले के बाद तरसेगा। आतंक के खिलाफ प्रहार, हर ओर से सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी गई है। भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग बंद करने की बात कर दी गई है। भारत के बड़े कदम सीसीएस की बैठक में लिए गए हैं। सीसीएस अर्थात शीर्ष जिम्मेदारों की वो संस्था है जो संस्था सुरक्षा से संबंधित फैसले लेती है, उसे सीसीएस कहते हैं। ये कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण समिति है जो कि सुरक्षा से जुड़े फैसले लेने के लिए जिम्मेदार होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में विदेश सचिव, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद रहे और फिर बड़े निर्णय हुए। प्रधानमंत्री मोदी जो कि सऊदी अरब का दौरा अधूरा छोड़कर भारत आए थे, गृह मंत्री अमित शाह जो श्रीनगर रहे, पहलगाम का हालात उन्होंने जाना और पूरी जानकारी बैठक में उपलब्ध करवाई और उसके बाद बड़े फैसले लिए गए हैं। आतंक की कमर तोड़ने के लिए एक तरफ भारत की तैयारी है तो वहीं कमर तोड़ने के साथ जो भुजाएं हैं उन भुजाओं को मजबूत करने के पीछे जो लोग हैं उन शक्तियों को चुन चुन कर भारत मुकाबला के लिए तैयार है। और एक संदेश भारत सीधा देता हुआ कि अगर आप पीछे छिपकर भारत पर प्रहार करने की मंशा रखेंगे, आप ये प्लान तैयार करेंगे कि भारत की जड़ों को कोई कमजोर कर सकता है, तो अब वो भारत नहीं है, ये नया भारत है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि एक नया भारत है, डबल इंजन की सरकार, केंद्र सरकार बड़े फैसले लेने के लिए समर्थ है, सशक्त है और ऐसे में बड़े बैठक सीसीएस की बैठक में लिए गए। सिंधु जल समझौते को जरा समझिए, ये भारत और पाकिस्तान के बीच जल वितरण को लेकर था। सिंधु नदी जो प्रणाली है उसके जल को लेकर जो बंटवारा हुआ, बंटवारा किस अनुपात में होगा, बंटवारा कैसे होगा, क्या इसकी सीमाएं हैं, उसको लेकर ये समझौता 19 सितंबर 1960 का समझौता था और इतना पुराना समझौता जो कि विश्व बैंक की मौजूदगी में हुआ था, उस समझौते पर भारत ने रोक लगाई है। सिंधु जल समझौते पर रोक विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। इसके अलावा क्या कदम उठाए जाते हैं, कुछ खुफिया तरीके से भी फैसले रखे गए हैं। ये तो वो प्रहार है जो ऊपरी तौर पर होगा, लेकिन अंदरूनी रूप से आतंक की कमर कैसे तोड़ी जाएगी, हाथ किस तरह से भारत कमजोर करेगा, ये अभी फैसले बाकी है। लेकिन फैसले माना जा रहा है कि सीसीएस की बैठक में हो चुके हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा नहीं मिलेगा। पुलवामा अटैक 2019 का जब 40 जवान शहीद हुए थे, उस अटैक के 13 दिन बाद बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। जो आतंक के गढ़ बने हुए थे, जो आतंक के यहां छिपे थे, उन पर भारत के सैन्य बलों ने हमला किया था। एक पूरी टीम बाकायदा तैयार हुई थी, जिसके बाद यह हमला किया गया था और हमला कर आतंक के गढ़ का सफाया कर दिया था। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान ने कहा था और इस हमले को लेकर भी सवाल खड़े किए थे, लेकिन भारत अपनी बात पर अडिग रहा। और अब एक बार फिर जब ऐसा ही हमला दोहराया गया 2025 में और पर्यटकों के साथ जो घिनौना कृत्य हुआ। देखिए, जम्मू कश्मीर जो कि धरती का स्वर्ग है, हर एक भारतीय और हर विदेश में रहने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के दीदार करने के सपने संजोए रहता है। धरती का स्वर्ग कहलाए जाने वाले कश्मीर को लेकर जब आतंकियों को भनक लगी कि जम्मू कश्मीर में शांति आने लगी है, जम्मू कश्मीर में पर्यटक
बिना सोचे समझे आने लगा है, बेखौफ होकर जम्मू की वादियों को निहार रहा है, तो फिर पर्यटकों को टारगेट किया गया, भय फैलाने का प्रयास किया गया, क्योंकि पर्यटक जो 1 लाख थे 2022 तक, वो 2 करोड़ तक पहुंचे 2024 तक आते हुए। The CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The Defence, Military, Naval and Air Advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air Advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain. मोदी सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज सीसीएस की बैठक। और फिर बड़ी बात, मोदी सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है और कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी। सर्वदलीय बैठक के बाद क्या सर्वव्यापी नीति बनाई जाती है आतंकियों के खात्मे के लिए, क्योंकि अब आकर के अलग अलग पार्टियों के नेता भी कह रहे हैं कि ये किसी व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि ये पूरे देश पर प्रहार है। अर्थात पूरा देश आतंक के खिलाफ एकजुट है और एकजुट होकर के ही आतंक से लड़ाई लड़नी है। कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। आज जहां कई बड़ी बैठकें हुई, एक बैठक रक्षा मंत्रालय में हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 2.5 घंटे तक बैठक चली। फिर एक और बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में सीसीएस अर्थात सर्वोच्चतम, देश के सर्वोच्चतम पदों पर बैठे व्यक्ति मौजूद रहे और फिर बड़े फैसले बैठक में लिए गए। और अब कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। पहलगाम अटैक, जो कि इतिहास में दर्ज हो चुका है, घिनौना कृत्य जिसमें मासूमों पर निशाना साधा गया आतंकियों के द्वारा, और वो भी निशाना उनका नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर। अब आतंकियों की बर्बरता और दहशतगर्दों को लेकर के क्या एक्शन भारत का होगा। एक तरफ बड़े फैसले भारत ने किए हैं जो आतंक को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए, आतंकियों के हाथों को मजबूत करने वालों के खिलाफ भारत के फैसले, चाहे सामने आकर के ये कहते रहे कि हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आखिर हकीकत में भारत का खुफिया तंत्र क्या कहता है, रक्षा तंत्र क्या कहता है, गृह विभाग के पास जो खुफिया इनपुट है वो क्या कहते हैं। अब कहीं ना कहीं कुछ इनपुट जरूर होंगे जिसके बाद ये फैसला भारत की ओर से लिया गया है। लेकिन सभी फैसलों में सबसे बड़ा फैसला
सिंधु जल समझौते को लेकर के फैसला हुआ है, इस पर रोक लगाई गई है। सिंधु जल नदी प्रणाली जो कि 5 सहायक नदियां जिसमें सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को मिलकर इस समझौते के तहत जल विभाजित करने का भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षर हुए थे। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब